السلام علیکم معزز سامعین، آج میں ایک کتاب کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس کا نام ہے سفید کالی کتاب۔ محترم پروفیسر امتیاز سرور صاحب نے اس کو لکھا ہے۔ اس پر میں آج آپ کو ایک تبصرہ دے رہا ہوں اس کتاب کے بارے میں، جو میں نے کہنے کے لکھا ہے، اور کہنے کہ امید ہے کہ آپ اس کو پسند فرمائیں گے، اور اس میں اس سارے کتاب کا جائزہ آپ تک آ جائے گا۔ تحریری شکل میں ہی ہے۔ امتیاز سرور ایک چونکا دینے والا آدمی ہے۔ معذرت کہ اس جملے میں نے ادب کا وہ قرینہ اختیار نہیں کیا کہ جو محترم پروفیسر امتیاز سرور کے شایان شان ہے۔ 2004 کے ستمبر میں جب میں سرکاری ملازم ہو کر گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی فیصل آباد کا لیکچرر ٹھہرا تو پہلی ملاقات میرے لیے چونکا دینے والی تھی۔ مجھے صدر شعبہ محترم باجوہ صاحب نے فرمایا کہ آپ انگلش کی کلاسز کے حوالے سے امتیاز سرور سے مل لیں، وہ ہیڈ آف انگلش ڈپارٹمنٹ ہیں۔ میں ان کا نام پوچھتے پوچھتے ایک عجیب سی شخصیت کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ میرے ذہن میں تصور تھا کہ امتیاز صاحب کوٹ پتلون ٹائی سے لبریز اعلیٰ قسم کی انگریزی زبان میں ڈوبے ہوئے کوئی صاحب ہوں گے، لیکن یہاں ماجرا ہی عجیب تھا۔ میرے سامنے ایک کلین شیو درویش سا آدمی بیٹھا تھا، ہاتھ میں سگریٹ، ناک پہ اینک، بال الجھے ہوئے، عام شلوار قمیص، پاؤں میں چپل، اور سب کچھ دھڑام سے گر گیا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے تعارف کروایا، اعلیٰ قسم کی اردو اور انگریزی میں۔ آگے سے پنجابی کا جملہ مثل حملہ آن وارد ہوا۔ او شکر ربا تسی آ گئے، میں تو پڑھا پڑھا کے پاگل ہو گیا ماں، کلا میں بندہ اتوں کم چور تے نالے اینیاں کلاساں۔ لیجیے رہی صحیح کسر بھی جاتی رہی، لیکن رفتہ رفتہ امتیاز صاحب خوشبو کی طرح بستے چلے گئے، نرم دل، عاجزی و انکساری میں ڈوبے ہوئے، دنیا ہو مافیہا سے بے خبر لیکن اشہب علم کے ماہر شاہ سوار۔ کتاب سے اور قلم سے اپنا بھی تعلق تھا، سو خوب نپتی چلی گئی۔ اس عرصے کے رفاقت میں ان کا تبادلہ بھی ہوا اور وہ لاہور جا بسے، لیکن محبت اور عزت و احترام کا تعلق بڑھتا ہی چلا گیا۔ میں ہر معاملے میں ان سے بہت چھوٹا ہوں، لیکن وہ کبھی صاحب لگائے بغیر میرا نام نہیں لیتے۔ محترم امتیاز سرور صاحب لاہوری آب و ہوا میں جنم لینے والے آدمی ہیں۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے انگریزی ادب میں ایم اے کیا اور پھر تدریس سے منسلک ہو گئے۔ آج کل گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ریلوے روڈ لاہور میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں۔ جب وہ فیصل آباد میں تھے تو تب انہوں نے ایک دن مجھے اپنی ایک چھوٹی سی کتاب دی، اے پلیس کالڈ کھمکول۔ ایک نشست میں سے پڑھا تو محسوس ہوا کہ وہ تصوف کے جام پر جام لنڈھائے بیٹھے ہیں۔ میں بھی اپنی شاعری ان کو سناتا رہتا۔ وہ ہر شعر پر داد نہیں دیتے تھے، لیکن جس پر داد دیتے اس میں مجھے بھی کچھ خاص بات محسوس ہو جاتی تھی۔ خیر یہ سلسلہ تو اب بھی جاری ہے، لیکن سفید کالی کتاب یہ بالکل اچانک ہی میرے سامنے آئی، اور وہ بھی یوں کہ محترم امتیاز سرور نے اس ناچیز پر ذمہ داری ڈالی کہ اسے شائع بھی میں کرواؤں، اس کی نظر ثانی بھی کروں اور بسیط تاثرات بھی لکھوں۔ ٹی ایس ایلیٹ نے لکھا ہے کہ تنقید کارکردگی پر ہونا چاہیے، شخصیت پر نہیں۔ پوسٹ ماڈرنزم اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ جب ایک مصنف کچھ لکھ دیتا ہے تو اس کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے، اور تحریر سراسر کاری پر انحصار کرتی ہے کہ اب وہ اس کے کیا مطالب و معانی نکالے گا۔ سفید کالی کتاب پر میرا تبصرہ اسی نوعیت کا ہوگا، جسے لازمی نہیں کہ ہر شخصیت درست مانے یا اس سے اتفاق کرے۔ میں نے جیسے کہا کہ امتیاز صاحب ایک چونکا دینے والے آدمی ہیں، یقیناً کتاب کا نام اس کی درست غمازی کرتا ہے۔ کتاب پر تبصرہ کے حوالے سے میں اپنی نگارشات کو دو حصوں میں پیش کروں گا۔ ایک اس کا میٹر یعنی وہ خیالات جو کہ مصنف نے پیش کیے ہیں، اور دوسرا مینر یعنی وہ تراکیب، تماثیل، استعارے وغیرہ جن کے ذریعے مصنف نے اپنے دل کی بات پہنچائی ہے۔ میٹر کے حوالے سے یہ کتاب نظم اور نثر کے درمیان کی ایک چیز ہے، جسے نظم کہا جائے تو بہتر ہے۔ فلپ سڈنی نے کہا تھا کہ شاعری امیجنیشن کا نام ہے، قافیہ ردیف وزن تو محض آرائش ہے۔ امتیاز صاحب کا تخیل اس قدر توانا ہے کہ وہ اس جدید بلکہ ما بعد از جدید شاعری کو چھوتا دکھائی دیتا ہے۔ بحث طالب علم جب میں ان کی نثری نظموں کا جائزہ لیتا ہوں تو یہ ایک ہی کتاب کلاسیسزم، رومانٹسزم، ماڈرنزم
اور पोस्ट मॉडर्निज्म के बतदरीज इर्तिकाई मराहल तय करती नज़र आती है। रोमांटिसिज्म की तहरीक का ज़ोर तख़य्युल, आसान अल्फाज, तहय्युर और फ़रार पर है, लेकिन इम्तियाज़ साहब फ़रार से फ़रार करते हैं। तहय्युर अपने अरूज पर है, अल्फाज के चुनाव में वो तकल्लुफ़ नहीं बरतते, उनका सारा ध्यान आइडिया पर है। उनकी नस्म मुक़द्दस किताब इन सब का आला नमूना है। मुक़द्दस किताब के उन्वान से कारी इसके मुमासिल डिक्शन की उम्मीद करता है, लेकिन इम्तियाज़ साहब तहय्युर का एक सैलाब छोड़ देते हैं और उमारवियत के रंग में जदीदियत के सारे रंग घोल देते हैं। कहते हैं, नेस्ले की एक बोतल शर्माती हुई बेशर्म एनजीओ बिस्किट का एक डब्बा मुझे दे जाएगी, यूं फंड जस्टिफाई हो जाएगा। मॉडर्निज्म किसी एक तहरीक का नाम नहीं, बल्कि बहुत सी तहरीकात का मजमूआ है। इम्तियाज़ साहब इस हवाले से पैराडॉक्सिज्म के कायल नज़र आते हैं, जो बज़ाहिर गलत लेकिन हकीकत में दुरुस्त बात की गम्माज़ी करती है। इसका इज़हार किताब के नाम से भी है और नज़मों के अंदर छुपे ख्यालात से भी। इस हवाले से जागता शहर एक खूबसूरत मिसाल है। अंधी काली धूप फैली हुई, सन्नाटे का शोर हर तरफ बरपा, चीखती गूंगी सदाएं, एक झोंका तेज़ हवा का ठहरा हुआ, पाँव कटे भागते ख्वाब। इम्तियाज़ साहब के ख्यालात में तनव्वुर भी है और मरकज़ियत भी। एक तरफ वो अच्छे वक्त का इंतज़ार करते दिखाई देते हैं, जैसे ख्याल सवाल का दामन पकड़े खड़ा है, सोच तितली के पर किसने काटे हैं, कुफ्र का भांडा कब टूटेगा। या जैसा कि एक नज़र उनकी नज़म है, उसमें लिखते हैं, खड़ा तक रहा हूँ न जाने कब तुम्हारी एक नज़र उठे और बात बन जाए। ताहम उनका इंतज़ार मायूस नहीं, बल्कि इसमें उम्मीद की भरपूर उम्मीद नज़र आती है। कहते हैं, शायरी कल्बी वारदात भी है और मुआशरती वारदात का नतीजा भी। इम्तियाज़ साहब के यहाँ दोनों रंग मौजूद हैं। ज़रा वारदात कल्बी का मुशाहिदा कीजिए। ख़बर न जाने क्यों मैं रोज़ाना उसकी गली की नुक्कड़ तक जाता हूँ, उसे ख़बर तो होगी। अब ये मज़ीद खूबसूरती है कि इसे कारी इश्क़ मजाजी के माना में लेता है या इश्क़ हकीकी के, क्योंकि ये नज़म दोनों दरवाजे खोले देती है। इम्तियाज़ साहब मुआशरे पर गहरी नज़र रखते हैं। उन्हें मुआशरे के बदन में मौजूद दुख, तकलीफ़, नक्स सब महसूस होता है, जिसे वो बज़ाहिर एक बेरहम सर्जन की तरह काटते जाते हैं, लेकिन इस सारे अमल में वो हकीकत का दामन नहीं छोड़ते। हाँ, जिस्म बेचती हूँ, बेशक लगाओ बोली तुम भी, चमकता शीशा हूँ, चाहो तो देख लो आर पार। वो मुस्कुराई, अंदर मौलवी सर झुकाए बैठा था, टोपी उसके पाँव में आ गिरी थी। इम्तियाज़ साहब ने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है। वो आसमान और ज़मीन दोनों पर नज़र रखते हैं। उनका ध्यान अल्लाह और उसके बंदों के दरमियान बटा हुआ नहीं, बल्कि लगा हुआ है। वो अल्लाह को एक मानते हैं और इंसानों को भी एक मानते हैं। उनकी नज़मों में जुड़त यानी कनेक्टिविटी और यकजहती यानी यूनिटी के अनासिर नुमायाँ हैं। ताहम वो फ़र्द वाहिद से गाफिल नहीं, जिसे वो लम्हा मौजूद से हर पल आगाह करते दिखाई देते हैं। मॉडर्निज्म की अपने पहलुओं पर रोशनी डालते डालते इम्तियाज़ साहब पोस्ट मॉडर्निज्म को जा छूते हैं, जहाँ कोई एक सच नहीं, बल्कि सबका अपना अपना सच है। एक नज़्म है मुक़द्दस, अजवा मुक़द्दस है और इसकी गिछली भी। मानता हूँ बात तो दुरुस्त है, दोनों का ताल्लुक़ उनसे है, हाँ मगर किसी का नहीं कुल कायनात में, तो फिर ये कैसे, ये मुक़द्दस है, वो मुक़द्दस है। पोस्ट मॉडर्निज्म का अहम नज़रिया मरकज़ियत का इनकार है, जिसके मुताबिक मरकज़ इसलिए मरकज़ है कि इसे मरकज़ तस्लीम करने वाले मौजूद हैं। अगर मरकज़ तस्लीम करने वाले मरकज़ का इनकार कर दें तो मरकज़ खुद ब खुद रेत की दीवार साबित होगा। इम्तियाज़ सरवर साहब का कलम इस हकीकत को डरावना ख्वाब में यूँ आश्कार करता है, हम सात रंगे बेरंगे सांप, ज़रूरत की पटारी में बंद, डंक किसने खींचा है, पटारी का ढक्कन मदारी के हाथ में, वक्त गिरहें खोलेगा, रंग बिरंगे सांप फिर से नमूदार होंगे। पोस्ट मॉडर्निज्म के ज़ैली नज़रियात फेमिनिज़म और मार्क्सिज्म वगैरह की सूरत ज़ाहिर हुए हैं। फेमिनिज़म यानी ख़वातीन के हकूक़ की पामाली पर एहतजाज का फ़लसफ़ा इम्तियाज़ सरवर साहब के यहाँ इंतहाई मुख्तसर अंदाज में यूँ ज़ाहिर होता है जैसे उनकी 2 लाइनों की नज़्म है, एक औरत की कहानी, छाबड़ी पर बिकती जामन। अलगरज़ इम्तियाज़ सरवर साहब के यहाँ इस कदर तनव्वुर है कि कारी को बेहद मुस्तैद होने की ज़रूरत है।
ये किताब एक ऐसा कैनवस है जिस पर बेशुमार गैलेक्सीज जमा हो गई हैं। उनके ख्यालात लम्हा मौजूद के ख्यालात हैं जो पढ़ने वाले को मौजूद रहने का दर्स देते हैं। मैनर के हवाले से इम्तियाज़ सरवर साहब का कलम माला माल है। पैराडॉक्सेस, सिमिलीज, इमेजेस, सिम्बल्स और कंसीट्स माला के मोतियों की तरह आती चली जाती हैं, और ये तरह की बाज़ औक़ात इस कदर बेरहम हो जाती हैं कि कारी महज हैरत में गुम होकर रह जाता है। जैसे उनकी एक नज़्म है, मेरी ज़रूरत का शहाब मेरी ख्वाहिश पर मेरे ही ऊपर आन गिरा है, जैसे मुर्दा मट्टी तले, जैसे तावीज़ हुब पत्थर तले, जैसे मज़दूर गंदम की बोरी तले, जैसे ज़बान दांतों तले, जैसे ख्वाब नींद तले, जैसे मैदान जंग में लाशें, जैसे क्लास ख़त्म होने पर कुर्सियाँ बिखरी हुई, जैसे नाजुक कच्ची कली पाँव तले मसली हुई, जैसे तस्बीह के दाने बिखरे हुए, जैसे लड़की की गीली शलवार। इम्तियाज़ साहब एब्स्ट्रैक्ट को कंक्रीट करते हैं, उनकी सारी शायरी दिखाई देती है। इस मामले में वो सैयद वारिस शाह के पैरोकार नज़र आते हैं, ताहम उनकी तशबीहात अपनी हैं जो आम जिंदगी से ली गई हैं और भरपूर हैं। इम्तियाज़ साहब इस मामले में रख रखाव का इल्ज़ाम नहीं करते, क्योंकि वो ज़िंदगी की हकीकत दिखाना चाहते हैं, और हकीकत साइकिल के पहिए पे लगी कीचड़ भी है, और हमसाई के घर लटका हुआ बोसीदा पर्दा भी, बच्चे के लिए चारपाई के साथ बंधी झोली भी है, और स्टेशन पे लगा क्लॉक भी, लेटर बॉक्स पे लगा ताला भी है, और दीवार पे लगी पान की पिचकारी भी। ये सब कुछ मैं नहीं लिख रहा, ये तशबीहात और इस्तिआरे उनकी नज़मों में जा बजा बिखरे पड़े हैं। ख़ुद कलामी जैसी बाज़ नज़में तो इस कदर पेचीदा हैं कि शायद कारी के साथ शायर भी थक जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट को कंक्रीट कैसे कर दिखाया जाए। इम्तियाज़ सरवर की नज़मों की एक और खूबी डायलॉग फॉर्म है। बज़ाहिर यूँ लगता है कि शायर ख़ुद कलामी के अमल में है, लेकिन जैसे जैसे कारी पढ़ता जाता है वैसे वैसे उसे महसूस होता है कि ये ख़ुद कलामी नहीं बल्कि दो कलामी है, जिसमें शायर उससे बातें कर रहा है और एक लम्हे को न अपनी तवज्जो भटकने देता है न कारी की। इम्तियाज़ के यहाँ ख्यालात की एक क़यामत बरपा है और उनके इस्तिआरे इस क़यामत को बखूबी दिखाते हैं। जहाँ तक सफ़ेद काली किताबों की पंजाबी नज़मों का ताल्लुक़ है तो इनमें और उर्दू नज़मों में एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। उर्दू नज़मों में इम्तियाज़ साहब बातिन से ज़ाहिर की तरफ आते हैं, जबकि पंजाबी नज़मों में वो ज़ाहिर से बातिन की तरफ जाते हैं। अगरचे दोनों का मौजू इंसान, उसकी ज़िंदगी, मुआशरा और गिरती अक़दार हैं, लेकिन उर्दू की नज़मों में इम्तियाज़ साहब मुआशरे को मौजू बनाते हैं, जबकि पंजाबी नज़मों में वो इंसान के बातिन और उसके अंदर छुपे दर्द को मौजू बनाते हैं। अगर उर्दू नज़मों का मौजू ज़िंदगी के मसाइल हैं तो पंजाबी नज़मों में मौजू खुद ज़िंदगी है। ऐसी ज़िंदगी जो कभी जबर व क़द्र के माबैन मुअल्लक़ है, कभी शनाख्त और पहचान की तलाश में सरगर्दा है, कभी महज एक इश्तिहार है, कभी तन्हाई के तारीक अंधेरों में सिसक रही है, कहीं इंसान खुद ही अपनी ज़िंदगी पर नौहा कुना दिखाई देता है। नज़म बेलिया की इब्तदाई लाइन्स इसी तरफ इशारा करती हैं कि बेलिया असी लुटिया अपना आप, निकल के जिस्मों बाहर, देवा दुहाई मारा कूक, पावा वैन, ताके अपनी मैयत अगे। जदीद इंसान जिस कदर ज़हनी कशमकश से दो चार है, इम्तियाज़ सरवर उसे अपनी सयोनी नज़म में बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं। इल सोचा खांदियाँ जावन मास हयाती, फसिया विच लोड़ा हथों निकली जावे ख़ास हयाती। इम्तियाज़ सरवर का एक और शिकवा बातनी ज़िंदगी के जमूद पर है जो इर्तियाश चाहता है, और एक लम्हे को ये शिकवा उन्हें एग्जिस्टेंशलिज्म तक ले जाता है। जैसे हयाती दा पेंडा में बड़ी खूबसूरती से रेपिटिशन पर तंज करते कहते हैं, एक मुक्की चुक लई दुई तैयार। जबर के नज़रिए को एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में यूँ बयान करते हैं, खौरे क्यों कंध ते वजियाँ लीकां लगदे ने सारे। ताहम वो इस जमूद और जबर के अमल में सिर्फ ज़िंदगी को इल्ज़ाम नहीं देते बल्कि ख़ुद इंसान को भी इसका जिम्मेदार करार देते हैं। तैनू बीमारी लगी है, तेनू इक्को जे दिसदे ने सारे, तेरा इलाज तेरे कोल है। तू मीटियाँ ने अखां खोल। उर्दू नज़मों की तरह यहाँ भी इम्तियाज़ सरवर सबको एक इकाई, वहदत और ताल्लुक़ में जोड़ने के ख्वाहिशमंद नज़र आते हैं। बलदी बुझदी बत्ती कोई तो होवे, दीवे जेड़ा तेल पावे,
सुंजा होया बेड़ा। मॉडर्निज्म के इन्वान के तहत उनकी नज़म एक तरफ पहली जंग अजीम 1914 से 18 के बाद इंसान की हालत बयान करती है, दूसरी तरफ वो हमारे मुआशरे में इस कैफियत को बयान करती है जो बग़ैर किसी अजीम जंग ही के आन वारिद हुई। गुआचा रात दिसदा नहीं, धूड़ उड्डीए हर पासे, अन्नियां हुईयां अखां, सिर विच पै गई खे, की लंघिया इत्थों, लंघिया किवें इत्थों, तुरिया फिरे मुसाफिर। जमूद का ये सफ़र गुड़ती, गुल्ली डंडा, कैबिनेट मीटिंग जैसी और नज़मों से भी ज़ाहिर है। ताहम इन सब नफसियाती पहलुओं के साथ इम्तियाज़ सरवर की पंजाबी नज़में रूहानी पहलू भी रखती हैं, जैसे लगदा तुहाडे अंदर कोई होर वड़ बैठा, वेले दी गड्डी तक कदों दी लंघ गई है, तुसां कल्ले पिछे रह गए हो, या ये कि लोड़ नूं मौत न आई, खादियां सदियां हड़प करके दुख पानियां विच टुरदी जावे अन्नी हयाती। रांझन इक्को अलफ हक सच जग दा हासा, रोना कुल हयाती दा जैसी बहुत सी नज़में इसी तरह के राज अफशा करती नज़र आती हैं। उर्दू नज़मों की तरह पंजाबी नज़मों का कैनवस भी बहुत वसी है, उनमें मज़ीद क्या क्या रंग हैं इसका फैसला खुद कारी ही कर सकता है। इम्तियाज़ सरवर के ख्यालात की हशर सामानियों का सफ़र लोक कहानियाँ से शुरू हुआ और ए प्लेस कॉल्ड घमकोल से होता हुआ सफ़ेद काली किताब तक आन पहुँचा। जल्द ही 14 दिन एक नया पड़ाव होगा जहां इम्तियाज़ सरवर हकीकतों की निकाब कुशाई करते हुए खुश फहमियों का सिजेरियन करते दिखाई देंगे। उम्मीद है सर्जरी का ये सफ़र रुकेगा नहीं। मैं मसूद रहमान, हेड ऑफ़ इंग्लिश डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज टेक्नोलॉजी, उसने ये कहने के तबसरा लिखा आपके सामने पेश किया जो इस किताब में मौजूद है, सफ़ेद काली किताब में। ये आपको मिल सकती है, अगर आप इसमें अपना एड्रेस देंगे तो उस एड्रेस पर आपको ये किताब जो है वो मिल जाएगी। जो लोग इसको पसंद करें, ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ जो लिटरेचर के लोग हैं वो ज़रूर इसको पढ़ें। बहुत उम्दा, समझने सोचने वाली किताब है। और इसमें से एक आध मैं नज़म पढ़ देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि इस नज़म में और क्या कुछ है। चलिए, बर्तन दुकान 45 सफ़े पे, शेल्फों में सजे सोहने कितार दर कितार, छोटे बड़े चमकते दमकते टैग लगे, कुछ बिखरे लुढ़के पाँव में औंधे मुँह गिरे, कुछ लटकते हुए कीलों पर, चंद टेढ़े नाकारा, पीतल सोने चांदी लोहे तांबे से बने, चंद बिके हुए कुछ बिकने को तैयार, खाली बर्तन सब दुरुस्त मगर सोहनी का कच्चा घड़ा किधर है, ऐ वक्त तुझे क्या हुआ है। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में मैं इसी की एक नज़म का जो बड़ी खूबसूरत है और तवील है उसका पूरा तनकीदी जायज़ा भी पेश करूँगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।